हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शमा। सो आज हम लोग करने वाले हैं काफ़ी टाइम के बाद में हम लोग लेकिन लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था साइंस एंड सीईआरटी बुक का चैप्टर 3 ऑफ फाइबर टू फैब्रिक। इसलिए अब हम करेंगे चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सो उसका पेज नंबर 26 है। सो लेट्स ओपन 26 पेज नंबर। बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा छोटा सा चैप्टर है। सो ये हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। सो चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। वी हैव सीन दैट फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन दैम. Now, not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. Exactly. We see around us a chair, a bullock cart, a table, a cooking utensils, books, clothes, things, toys, water source, stones, and many other objects. All these objects have different shape, colors, sizes. A list may include a rubber ball, a football, and a glass marble. If we include objects that are nearly round मतलब जो राउंड शेप में होता है, a list could include objects like apples, और क्योंकि वो राउंड होता है, ऑरेंज राउंड होता है, एंड फुटबॉल भी राउंड होती है, बास्केटबॉल भी राउंड होती है, एंड अर्दन पिक्चर भी राउंड होता है. मतलब अर्दन पिक्चर को बेसिकली हम घड़ा कहते हैं हिंदी में. Suppose we are looking for objects that are edible. We might include the items that we have listed. We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics. So जैसे जो plastics के प्लास्टिक बेसिकली मटेरियल होता है काइंड ऑफ. सो उससे जो ऑब्जेक्ट्स बने हैं वो होते हैं जैसे टेबल होती है, चेयर होती है, बॉटल होती है प्लास्टिक की, etc. Okay. So pipes होते हैं, and many such objects may find a place in this group. There are so many ways to group objects. In the above examples, we have grouped objects on the basis of their shape or the material they are made from. All objects around us are made of one or more material. जैसे टेबल प्लास्टिक की भी हो सकती है, वुड की भी हो सकती है. सो ये 2 मटेरियल्स की बनी है. सो उसमें ये लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ मोर देन 1 मटेरियल. ओके, कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स? ओके, लेट्स थिंक. सो और क्या क्या होता है मटेरियल्स? कॉटन होता है, वुड होता है, स्टील होता है, और आयरन भी होता है काइंड ऑफ, प्लास्टिक भी होता है, etc. पेपर भी हो सकता है. ओके, लेट अस कलेक्ट एज मैनी as objects as possible from around us. Each of us could get some everyday objects from home, and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school. What we will have in a collection? Chalk, pencil, rubber, notebook, duster, hammer, etc. nails, whatever. etc. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, bed. Okay. For example, separate all objects from this collection that are made from paper or wood. This way we have divided all objects into groups. One group has the objects that are made from paper, one object had objects made from wood, while other have the objects made from plastic, etc. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. Let us be a little more systematic. List all objects collected. Try to identify the materials that each one is made of. It would be fun to make this large table, collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friends, टीचर्स एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई. तो आप लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, सो लेट्स डिस्कस. तो मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम बोलूँगी एंड हमें मटेरियल आइडेंटिफाई करना है. चलिए, पहला ऑब्जेक्ट है प्लेट. तो प्लेट किस से मटेरियल से बनी होती है? स्टील से बनी होती है, ग्लास होती है, कभी कभी प्लास्टिक की भी होती है प्लेट. नेक्स्ट है पेन. प्लास्टिक का होता है, लेदर का नहीं होता. पेन होता है, प्लास्टिक का भी होता है, मेटल का भी हो सकता है शायद. चलो, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है टेबल. टेबल होती है, वुड की होती है, प्लास्टिक की भी होती है, और भी ऑब्जेक्ट्स की हो सकती है, आई डोंट नो. चलो, सो दिस वाज द टेबल.
Okay, you can also add more materials in column 1 that are known to you. You can add comments में बताना. Now try and think of everyday objects you know that are made mainly of these materials and list them. Okay. सो अब हमें क्या करना है, अब मटेरियल्स ये होंगे, हमें ऑब्जेक्ट्स बताने हैं. तो वुड से क्या बना होता है, चेयर बनी होती है, टेबल बनी होती है, बेड बना होता है, etc. पेपर से बुक्स बनती हैं, नोटबुक्स बनती है, कैलेंडर्स बनते हैं, न्यूज़पेपर्स बनते हैं, etc. लेदर से शूज़ बनते हैं, बैग्स बनते हैं, और क्या बनता है, हाँ फ़ोन केस बनता है. प्लास्टिक से टेबल, चेयर, और क्या होता है, बस आई थिंक ग्लास प्लेट, ये सब होता है. एंड कॉटन से तो ऑफकोर्स क्लोथ्स बने होते हैं, और भी बना होगा कुछ. Okay, first we grouped objects in many different ways. We then found that objects around us are made of different materials. At times, an object is made of a single material. An object could also be made of many materials, more than one material. And then again, one material could be used for making many different objects. What decides which material should be used for making any given object? It seems that we need to know more about different materials exactly. सो ये टॉपिक अभी एंड हो रहा है. अभी नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स. हैव यू एवर वंडर्ड वाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ. तो इसका मतलब ये है कि आपने कभी, आपको पता है टम्बलर क्या होता है, जैसे वाटर होल्डिंग जार कह सकते हो, तो वो कॉटन का क्यों नहीं बना हो सकता? बिकॉज बहुत सारे रीज़न है. फर्स्ट रीज़न है क्योंकि कॉटन सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा. कॉटन की इतना वेट नहीं है कि वो पानी का वेट सह सके, और कॉटन के अंदर में स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि जिससे पानी बाहर बह जाएगा. ओके, मैं एक पिक्चर है वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी. ओके, चलो पढ़ते हैं. देयरफॉर would it not be silly if we were to make a tumbler out of a cloth? What we need for a tumbler is glass, plastics, metal or other such material that would hold water. Exactly. तो ये देखो, इस लड़की ने बनाया है कॉटन का, और ये सारा पानी बह रहा है यहाँ पे. Silly things. Okay. We see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is being used and utilized every day by day. So what are the properties of materials that would be important for their usage? Some properties are discussed. Okay, so first property of material is appearance. Materials usually look different from each other. Wood looks very difficult from iron. Iron appears different from copper or aluminium. At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood. So basically इसमें कहा क्या गया है कि wood आयरन से डिफरेंट दिखती है, एल्यूमिनियम कॉपर से बेसिकली डिफरेंस बताया जा रहा है. अपीयरेंस इसे कहते हैं. ओके, सो डू यू नेक्स्ट बताने से, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ वाई. पहला क्वेश्चन है मेरा एक, इसमें दिया गया है वाई आयरन रॉड गेट्स डल वाइल यूजिंग एट कंस्ट्रक्शन साइट्स. तो मतलब इसका मतलब ये जो आयरन रॉड्स होती हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वो डल क्यों हो जाती हैं. ठीक है, तो आयरन पता है क्या है, आयरन मेटल है एक, और मेटल तो आपको पता ही होगा. मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स. लस्टर आपको पता होगा, थिन कोटिंग विच गिव सम काइंड ऑफ ग्लेज टू एनी सब्सटेंस, तो वो लस्टर होता है. लस्टर, मेटल इज़ लस्ट्रस. ओके, सो जो आयरन होता है, मेटल जो होता है, आयरन जैसे कि मेटल होता है, तो मेटल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इट रिएक्ट्स विद द मॉइस्चर एंड द गैसेस प्रेजेंट इन इट, देयरबाय फॉर्मिंग अ डल लेयर ऑफ द अदर कंपाउंड्स ऑन इट. तो इसलिए वो डल हो जाती है क्योंकि मेटल जब ऐसे रखा जाता है, सो एयर में जितनी भी केमिकल्स, डस्ट होते हैं, पार्टिकल्स, वो उस पर आ जाते हैं, जल जाते हैं. सो इसलिए आयरन रॉड डल होने लगती है. सो आपको मेटल भी पता चल गया है, लस्टर भी पता चल गया. अब मेटल की कुछ एग्जांपल्स आपको बता रही हूँ मैं. आयरन ऑफ कोर्स, कॉपर, गोल्ड, etc. सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल. आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ओके, अगर आपको देखना है कि एक मेटल पे लस्टर है तो उसके लिए या तो आप सैंड पेपर उस पर रब कर सकते हो, सैंड पेपर, या फिर आप उसको काट सकते हो तो उसके अंदर एक ग्लेज आ जाएगी, फ्रेशली कट सरफेस. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई अपीयरेंस, फिर हम लोग ने मेटल लस्टर पढ़ लिया. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस. सो materials that can be compressed easily are called soft.
मटेरियल्स विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली आर कॉल्ड हार्ड। तो कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड होता है तो सॉफ्ट, मतलब आपको पता ही है सॉफ्ट स्पॉन्ज होता है, हार्ड आयरन ये होता है, तो बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। इसको मैं पढ़ूँगी नहीं वर्ड टू वर्ड, मैं जस्ट आपको बताऊँगी। मतलब जैसे शुगर ले लो, उसको वाटर में मिलाओ, वो है मिल जाती है इजीली, तो उसे हम सॉल्युबल कहेंगे। बट सैंड लो, सैंड मिक्स होता है वाटर पे नहीं होता, तो उसे हम इनसॉल्युबल कहेंगे। सो जो मिक्स हो जाते हैं, जो वो होती है एक चीज़, अगर वो वाटर में मिक्स हो जाती है तो उसे सॉल्युबल कहेंगे, एंड नहीं होती है तो फिर उसे इनसॉल्युबल कहेंगे। ओके, नाउ चलो हम लोग ने सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फ्लोट और सिंक। फ्लोट और सिंक, तो फ्लोट और सिंक होते क्यों हैं? बिकॉज ऑफ देयर डेंसिटीज़। चलो अब एक तरफ लीफ ले लो और एक तरफ आप ले लो मेटल, नहीं, एक तरफ लीफ ले लो और एक तरफ स्टोन ले लो। ओके, सो लीफ फ्लोट होती है एंड जो वो होता है स्टोन होता है वो ऑफकोर्स सिंक होता है। सिंक मतलब एकदम पानी में जाकर बैठ जाता है। क्यों? बिकॉज पहले मैं आपको बताती हूँ लीफ क्यों फ्लोट होती है। बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द लीफ इज़ लेस देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर, वेयर एज द डेंसिटी ऑफ द स्टोन इज़ मोर देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर, दैट्स वाई इट सिंक्स इन द वाटर। समझ में आया आपको? सो इससे वो ये लीफ फ्लोट होती है और जो स्टोन होता है मोटा किसी का भी, वो होता है सिंक। ओके, अब नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। इसको भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी वर्ड टू वर्ड, मतलब आप समझ कर होंगे। पहले आता है ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक। सो पहले हम ट्रांसपेरेंट पढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंट थ्रू विच वी आर एबल टू सी कम्प्लीटली, जैसे ग्लास विंडो से आप आर पार देख सकते हैं तो उसे ट्रांसपेरेंट कहेंगे। ट्रांसल्यूसेंट, हम लोग ट्रांसल्यूसेंट से देख सकते हैं बट नॉट दैट क्लियर, क्योंकि मतलब हल्का सा जैसे, मतलब नॉट दैट क्लियर, मतलब ब्लर टाइप ऑफ। ओपेक, थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ कि हम जो शॉपकीपर्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट जो होते हैं डब्बे, वो क्यों यूज़ करते हैं? कैंडीज़ रखने के लिए, लाइक दिस। मतलब ये देखो, ये एक पिक्चर है जिसमें शॉपकीपर ने कांच के इतने बड़े बड़े बॉक्सेस रखे हैं और उसके अंदर चॉक टॉफ़ीज़ रखी हैं। और वो ट्रांसपेरेंट क्यों रखते हैं? ताकि कस्टमर्स इजीली उसे देख सकें कि कौन सी टॉफ़ी है, वरना फिर बार बार खोल कर देखना पड़ेगा, इसलिए दे यूज़ ट्रांसपेरेंट टू सी थ्रू इट। हम आपको ट्रांसपेरेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। और ट्रांसपेरेंट के एग्जाम्पल तो कांच, ग्लास विंडो, और ट्रांसलूसेंट के फ्रॉस्टेड ग्लास, ट्रेसिंग पेपर, वाइट कर्टन्स, लाइक दैट। और ओपेक जैसे वुड ले लो, वुड के आर पार हम नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं देख सकते, नो। ओके, चलो, सो ये हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक। तो आज मैं पढ़ रही हूँ अभी क्या क्या हम लोग ने डिस्कस किया। हम लोग ने हार्ड डिस्कस किया, इनसॉल्युबल डिस्कस किया, लस्टर, मटेरियल्स, मेटल्स, ओपेक, सॉल्युबल, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। ओके, सो चलो अब मैं आपसे कुछ बहुत ज़्यादा मिनी एक्सरसाइजेस पूछती हूँ जो कि आप आई होप जो अगर आपने चाहते ध्यान से सुना होगा बता पाएंगे। अगर आपको आंसर पता होगा ना लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। फर्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स। स्टोन इज़ ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। ध्यान से सुना, स्टोन इज़ ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। इज इट ट्रू और फॉल्स? चलो मैं बताऊँ, फॉल्स है। स्टोन ट्रांसपेरेंट नहीं होता, स्टोन ओपेक होता है, और ग्लास ओपेक नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि ग्लास के आर पार देख सकते हैं। अ नोटबुक हैज़ लस्टर। फॉल्स, अ नोटबुक इज नॉट हैविंग लस्टर। ओके, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। हाँ, पीस ऑफ वुड फ्लोट कर सकता है, बट अगर बहुत सारी वुड होगी तो वो फ्लोट नहीं कर सकती है। सो दैट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय गाइस।